رحم اللہ من کر الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلوبنا ومولانا جد الحسن والحسين بالقاسم بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولا علانت اللہ علی اعداء مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک فی القرآن المجید. صلوات پڑھے پر محمد. کا آغاز اپنے عیسائی بھائیوں کے شکریہ سے ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے دین اہم ترین مذہب کو محرم کو سادگی سے منایا. انہوں نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ اگر محرم الحرام میں غور کریے گا، محرم الحرام میں اگر آیا ہے لہذا انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو ثابت ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کا تعلق صرف مذہبی نہیں بلکہ انسانیت بھی ہے. صلوات پڑھے پر محمد. مومنین عبادہ، مومن سے مذاق کرنا بھی ثواب ہے. مولانا کی کیا خوب حدیث ہے، غور کریے گا کہ مومن سے مذاق کرنا بھی ثواب ہے، مذاق اڑانا ثواب نہیں ہے. مومن سے مذاق کرنا ثواب، مگر مذاق سے بڑھ کے مذاق اڑانا وہ عذاب میں تبدیل ہو جائے گا. صلوات پڑھے پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا صاحب آبدی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا آج کے وقت میں وہ لحاظ نہیں رہ گیا، وہ ادب نہیں رہ گیا، وہ مجلسے میں باتیں نہیں آتی. بہرحال ہم تو آج کے زمانے کے ہیں، ہم آج کے واقعات بتائیں گے، مگر ہمارے پہلے کے بزرگوں نے کیا کہا ہے کہ پہلے وہ احترام تھا، وہ ادب تھا، وہ لحاظ تھا، اس فرشی اعضا کی وہ عزت تھی. اگر اس کا ایک بھی پھول زمین پہ گر جاتا تھا، غور کریے، اگر اس کا ایک بھی پھول زمین پہ گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے چومتے تھے، سینے سے لگا کے بوسہ دیتے تھے. وہ عذاب کہا کہ اب وہ یہ ساری چیزیں ناپیر ہوتی جا رہی. کیوں نہ ہو یہ سب چیزیں ناپیر؟ اب غور کریے فرشی اعضا کا کیا مطلب ہے. ہمیں جہاں سے علم دیا جا رہا ہے، جہاں سے تاریخیں بتائی جا رہی ہے، جہاں سے کربلا بتائی جا رہی ہے، جہاں سے ہمیں اچھی باتیں بتائی جا رہی ہے، وہ جگہ ہم نے چھوڑ دیا. لوگ فرشی اعضا کو چھوڑ کے باہر بیٹھتے ہیں، گھومتے ٹہلتے ہیں، مگر یہ نہیں سنتے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، کربلا کا کیا اصلی مقصد تھا. لوگ یہ نہیں جانتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کربلا کا واقعہ نہیں جانتے، بس سن رہے ہیں کہ اگر فلاں جگہ انجمن گئی، آپ کی انجمن ماتم کر رہی ہے تو خوب اچھل اچھل کے کر رہے ہیں ماتم، خوب کس کس کے کر رہے ہیں. مگر وہی دوسرے کی انجمن کر رہی، جاؤ ماتم کرو، ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے انجمن کا صاحب بیاض نہ پڑ رہا ہے، ہم نہیں جائیں گے. اس کی انجمن کے لوگ ماتم کر رہے ہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا وہ مولا حسین کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہا ہے؟ کیا وہ مولا عباس کے علاوہ کسی اور کا تعارف کرا رہا ہے؟ کیا ذاکر کسی مصیبت کے علاوہ کسی اور کا مصائب پڑھ رہا ہے؟ نہیں. ہمارے ذہن میں اتنی گندگیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے نہیں. بس ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو نہیں جانا ہے. کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا. وہ ذکر حسین چاہے جہاں ہو، غریب کے گھر ہو، امیر کے گھر ہو، سب کے گھر جانا چاہیے. اس فرشی اعضا پہ کسی کو اپنے آپ کو بڑا یا چھوٹا نہیں دکھانا چاہیے. یہ فرشی اعضا اس پہ ادب سے آنا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے.
ना कि आ रहे हैं दौड़ के आके बैठ गए, फर्श अज़ा मुड़ गया। आपको नहीं पता इस फर्श अज़ा पे कौन आ रहा है, उस चप्पल को आराम से रखना चाहिए। आपको नहीं पता वहां पे कौन इमाम आ रहा, हमारा वो चौथा इमाम, बीमार इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो गरीब इमाम आ रहा है। अब अज़ादारो, आपने अलम को चूमा, आपको नहीं पता उससे क्या हासिल किया, बस चूम लिया। जुलझाना को चूमा, नहीं पता उससे क्या हासिल हुआ। ताबूत को चूमा, नहीं पता उससे क्या हासिल हुआ। एक दफा अलम को चूमे और एक लम्हे के लिए सोचे हमें उससे हासिल क्या हुआ है। अपने जहनियत को बदलने का मैं बता रहा हूँ तरीका। अलम को एक दफा चूमे, एक दफा एक लम्हे के लिए सोचे कि हमें उससे हासिल क्या हो रहा है। जुलझना को चूमे, एक दफा सोचे कि हमें इससे क्या हासिल हुआ है। ताबूत को चूमे, एक लम्हे के लिए बस सोचे कि हमें इससे क्या हासिल हुआ है। अगर हम अपनी जहनियत ऐसी बना लेंगे तो भाई भाई का हो जाएगा, बहन भाई का क्या रिश्ता है वो पता चल जाएगा, भाई भाई की मोहब्बत समझ आ जाएगी। अलम को चूमे, एक दफा सोचें अलम से क्या, किसी भी चीज को सिर्फ चूमे नहीं, बस चूम के ये उससे हमें हासिल क्या करना है, दर से करबला हासिल करें, दर से इंसानियत हासिल करें, दर से करबला हासिल करें, दर से इंसानियत हासिल करें, इमाम हुसैन के पैगाम को हासिल करें, सीरत ज़ैनुल आबिदीन हासिल करें, ये सब हासिल करें, बस चूम ना लें। इस फर्श अज़ा से उठ के चूमे, क्योंकि इस फर्श अज़ा पे आ कौन रहा है वो किसी को नहीं पता। चूमते नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। इस फर्श अज़ा को चूमना अखबारी नहीं है, मैं इसको साबित करके दिखा सकता हूँ। इस फर्श अज़ा पे आ कौन रहा है वो किसी को नहीं पता। कोई भी ऐसा दुनिया में शिया नहीं है जो कहे कि हम गाजी अब्बास का अलम नहीं उठाएंगे। जो भी नाम लेवा शिया है वो भी आगे आगे बढ़ता है कि हम गाजी अब्बास का अलम उठाएंगे, हम गाजी अब्बास का अलम उठाएंगे। गाजी अब्बास का अलम उठाने का सवाब क्या है, बहुत बड़ा सवाब है। सलवात लो अज़ादारों, मैं अपनी मंजिल पे आ गया। आज 10 सफर की रात है। बीबी ज़ैनब उम्मुल मसाइब है, बीबी सकीना बिंतुल मसाइब है। बीबी ज़ैनब मसाइब की माँ है, बीबी सकीना मसाइब की बेटी है। अज़ादारों, आज आपको बीबी सैयदा को उनकी पोती का पुरसा देना है। अज़ादारों, गिरिया करो जितना कर सकते हो। आज आपको बीबी सैयदा को उनकी पोती का पुरसा देना है। जब इमाम हुसैन क़ैमे से बाहर आते हैं, क़ैमे से बाहर आके एक दफा दाएं देखते हैं, एक दफा बाएं देखते हैं और रो के कहते हैं, ऐ अब्बास, ऐ अली अकबर, आप सबको मैंने सवार किया, आप सबको मैंने सवार किया, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं है। रावी कहता है एक बुर्का पोश बीबी ख़ैमे से बाहर आती है, रो के कहती है, भैया आपकी बहन ज़ैनब अभी जिंदा है, मैं आपको सवार करूंगी, मैं आपको सवार करूंगी। अज़ादारों, गिरिया करो, जितना कर सकते हो करो। कहा कि मैं आपको सवार करूंगी। इमाम सवार होते हैं, जुलझने ने अपना कदम नहीं बढ़ाया। इमाम कहते हैं, मेरा भाई अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जुलझने ने, बेजुबा जानवर ने अपना सर झुकाया, पैरों की तरफ दिखाया। इमाम देखते हैं एक 4 साल की सैयद, इमाम जमीन पे आते हैं, सैयदजादी को अपने सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं, बीबी आप ख़ैमे से बाहर क्यों आई हैं? बीबी सकीना कहती है, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने कहा, बेटा आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। बीबी सकीना ने कहा, बाबा जब से मेरा चचा गाजी गया है मेरी प्यास बुझ गई है, जब से मेरा चचा गाजी गया है मेरी प्यास बुझ गई है। इमाम ने कहा, बीवी ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने कहा, बेटा मैंने तिफली में नाना से वादा किया है, मैंने बचपन में नाना से वादा किया है, मैं जान देने जा रहा हूँ। इमाम ने वसीयत की, बेटा माँ जहाँ सोलाए सो जाइएगा, जिद ना करिएगा, मुझे बाबा के सीने पे सोना है, मुझे बाबा के सीने पे सोना है। कोई भी बाप अपनी बेटी का मसाइल सुन ना सकेगा।
हमारे इमाम अपनी बेटी का पुरसा कबूल करे। अज़ादारों, इमाम बीवी सकीना ने कहा, बाबा आप जब भी सीने पे सुलाते थे तो कहते थे, बाबा आप जब भी सीने पे सुलाते थे तो कहते थे बेटों के हक में भी सब कुछ है, बेटियों के हक में भी सब कुछ है, बेटों के हक में क्या है। इमाम ने खाके करबला उठाई, सकीना के सर पे रखा, कहा तुम्हारे हक में यतीमी है, तुम्हारे हक में असीरी है, तुम्हारे हक में शाम की कैद है। अज़ादारों, जनाब मुस्लिम की शहादत आई। इमाम ने जनाब रुकैया को बुलाया, कहा अतीका को बुला। जनाब रुकैया गई, जनाब अतीका को बुलाती हैं, जनाब अतीका से कहती हैं मामू जान बुला रहे हैं। जनाब अतीका आती हैं, इमाम खड़े हो जाते हैं, जनाब अतीका के सर पे इमाम हाथ रखते हैं। कहती वो हाशिमी बच्ची रहती है, कहती है मामू जान मेरे बाबा खैरियत से तो है, आपने मेरे सर पे हाथ क्यों रखा, आपने मेरे सर पे हाथ क्यों रखा। इमाम ने कहा बेटा अपने आप को यतीम ना कहना, तुम्हारा मामू जान अभी जिंदा है, तुम्हारा मामू जान अभी जिंदा है। इमाम ने बीबी ज़ैनब से कहा मेरे संदूक लाए। बीबी ज़ैनब ने संदूक लाया, इमाम ने उससे 2 बालियां निकाली, जनाबे अतीका को पहनाई। जनाबे ये सब खड़ी सकीना देख रही थी। लो अज़ादारों, शाम गरीबा आई। बीबी सकीना रो के सोचने लगी मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, मेरे सर पे हाथ ताबूत उठा नहीं। आपने जिंदानों में कभी कब्रें बनती देखी है, आपने जिंदानों में कभी कब्रें बनती देखी है। शाम के बाजार में सारी बीबियां कैद हुई, एक जगह बीबी की रस्सी खुली, सबकी रस्सियां खुल गई। बीबी सकीना कदम बढ़ाई, सैयद सज्जाद के पास गई, सैयद सज्जाद के गले में अपनी बाहें डाली। सैयद सज्जाद ने एक भरी आवाज निकाली, कहा मेरे बहन सकीना मेरे गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, मेरे नालैन टूट चुके हैं, मेरे पैरों में कांटे हैं, मेरे पैरों में कांटे हैं, मेरी जंजीरें गर्म हो चुकी हैं, मेरी जंजीरें कोई भी हिलाता तो मेरी खाल उतर जाती है। सकीना को एक दफा पानी मिलता है, सकीना उस पानी को नहीं पीती है। सकीना उस पानी को सैयद सज्जाद के जंजीर पे डाल देती हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना क्या बात है, आपने पानी क्यों नहीं पिया। बहन सकीना कहती हैं भैया आपकी जंजीरें गर्म हो रही हैं, मैं अपनी जंजीरों को ठंडा कर रही हूँ। बीबी सकीना ने कहा भैया मैंने आपको कभी पैर सीधे करते नहीं देखा। सैयद सज्जाद ने रोकर कहा बहन सकीना मेरे पैरों में कांटे हैं, मैं जब भी पैर सीधे करता तो मेरे पैरों के कांटे मुझे दर्द देते हैं। सकीना ने उन सैयद सज्जाद के पैरों से कांटे निकालना शुरू किए, कांटे निकालना शुरू किए। सैयद सज्जाद ने कहा बहन सकीना मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकूंगा, आपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों के कांटे निकाले हैं, मेरे पैरों के कांटे निकाले हैं, मगर आपने तो मेरे पैरों के कांटे निकाल दिए, मगर आपके पैरों से कांटे निकालने वाला कोई नहीं है। लो अज़ादारों, सारी बीबियां शाम के जिंदान पहुंची। एक दिन ऐसा आया सकीना को बाबा की याद आती है। सकीना रो के कहती है अम्मा मैं एक दिन बाबा के पास चली जाऊंगी, अम्मा मैं एक दिन बाबा के पास चली जाऊंगी, अम्मा मुझे बाबा के पास जाना है। सकीना एक दफा सोती है, सकीना एक दफा सोती है, उनके ख्वाब में बाबा इमाम आते हैं। सकीना ने रोकर कहा बाबा ना जाइएगा, बाबा ना जाइएगा। हमने अपनी बाहें फैलाई, सकीना सीने से लगी, सकीना की आंखें खुली। सकीना रो के कहती अम्मा मेरे ख्वाब में बाबा आए थे, अम्मा मेरे ख्वाब में बाबा आए थे। दो अज़ादारों, सारी बीबियां तड़पने लगी। जब बुलंद आवाज में रोने लगी ना तो यजीद की आंखें खुली। यजीद कहता है क्या बात है, ये सारी बीबियां क्यों इतनी बुलंद आवाज में रो रही हैं, क्या बात है ये सारी बीबियां क्यों बुलंद आवाज में रो रही हैं।
दरोगा जिंदान कहता है एक बच्ची रो रही है, वो अपने बाबा को पुकार रही है। यजीद कहता है कौन है उसका बाबा? दरोगा जिंदान कहता है हुसैन, वो हुसैन की बेटी है। यजीद कहता है जा उसे उसके बाबा का सर दे दे, वो चुप हो जाएगी। दरोगा जिंदान ने तश्त उठाया, इमाम का सर रखा, उस पे कपड़ा डाला, सकीना के करीब गया। सकीना ने रोकर कहा ओ लईन, मुझे कोई ग़िज़ा नहीं खाना है, मुझे कोई ग़िज़ा नहीं खाना है। सकीना के सामने दरोगा जिंदान ने इमाम का सर रख दिया। सकीना आगे बढ़ी, इमाम के सर को उठाई, सीने से लगाई, रो के कहती है बाबा आपकी रगों को किसने काटा? बाबा मुझे शिमर ने तमाचे मारे, बाबा मेरी बालियां छीन ली गई। इतना कहने के बाद सकीना ने इमाम के मुंह पे मुंह रखा, लो दादादारो। सकीना जमीन पे गिरी, आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, इमाम के सर को गोद में लिए। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में ली और रो के कहती है सास नहीं है। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं अम्मा मेरी बहन सकीना इस कैद के रिहा से आजाद हो गई। लो आजादारो, कैद में कोहराम मच गया। वाह सकीना की आवाज बुलंद हो गई।